بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کے نام جو ہر ابتدا کی ابتدا اور ہر انتہا کی انتہا ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے تمام جانثار انصار پر۔ السلام علیکم جی، میں ہوں وقاص ماکا، اور آج کے ہمارے سیشن کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے اور ہماری لائف سے ملتا جلتا ٹاپک ہے، کیونکہ ٹوڈیز سیشن از اباؤٹ لیڈرشپ کوالٹیز۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ایک لیڈر کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جو اسے لیڈر بناتی ہیں، جو اسے عام انسان سے ڈفرینٹ کرتی ہیں، کون سی خصوصیات ہوتی ہیں ایک اچھے لیڈر میں، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم بات کریں کہ لیڈر کون ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں آج کل تو ہر کوئی خود کو لیڈر سمجھتا ہے، جبکہ وہ جو لیڈر کی کوالٹیز ہیں وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں سے مجھے ایک میرے استاد محترم اویس ربانی صاحب، ان کی ایک تقریر کا چھوٹا سا حصہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آج سے 70 سال پہلے ہم سب ایک قوم تھے اور ہمیں ایک لیڈر کی تلاش تھی، اور جیسے ہی ہمیں وہ ایک قائد، ایک لیڈر ملا، قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت، تو ہم نے پاکستان بنا دیا۔ لیکن آج 70 سال کے بعد ہم سب لیڈر ہیں اور ہم سب کو اپنی اپنی ایک ایک قوم چاہیے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھیں تو یہی حقیقت ہے کہ ہر کوئی خود کو لیڈر سمجھتا ہے، کوئی کسی کے ماتحت چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا حکم مانا جائے، کہ لوگ میرے انڈر میں کام کریں، میری سپرمیسی ہو، جو کہ ایک لیڈر کی پہچان بالکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور یہاں پر اگر میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کروں ایک لیڈر اور ایک باس کے بیچ میں، تو فرق ہی یہی ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور جو باس ہوتا ہے وہ اپنی سپرمیسی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں جو ہے دوسروں پر ڈال رہا ہوتا ہے، وہ حکم دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لیڈر اینڈ دا باس۔ تو میں نے کہیں پر پڑھا، بڑا بہترین کم الفاظ میں بہترین چیز لکھی ہوئی تھی لیڈر اور باس کے ڈفرینس کے بارے میں۔ لکھا ہوا تھا کہ باس از دا ون ہو سیز آئی، بٹ دا لیڈر از دا ون ہو سیز وی۔ باس از دا ون ہو گیوز کمانڈس، بٹ دا لیڈر از دا ون ہو ریکویسٹ، ہو آسک۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ سے پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، صلاح کرتا ہے، اس کے بعد اپنے فیصلے سناتا ہے۔ باس از دا ون ہو یوزز دا پیپل، بٹ دا لیڈر از دا ون ہو گرومز دا پیپل۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے انڈر کام کرنے والوں میں امپروومنٹ لاتا ہے، انہیں لیڈر بناتا ہے۔ اگر میں بات کروں ہو از دا لیڈر، ان سمپل ورڈز، لیڈر از دا ون ہو میک ادرس دا لیڈر۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں لوگ، انہیں بھی لیڈر بناتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سمجھ لیں یہی لیڈر کی جو ہے ڈیفینیشن ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، جو دوسروں کی امپروومنٹ کرتا ہے اپنے اندر، اس کے جو کام کر رہے ہیں اس کے انڈر میں۔ تو جی یہ تو ہو گیا واٹ از لیڈر اور واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لیڈر اینڈ دا باس۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ لیڈر کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لیڈر کے اندر کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو اگر میں 100 لوگوں سے پوچھوں گا تو ہر 100 لوگ مجھے ہر کوئی 2 کوالٹیز اگر مجھے بتانا شروع کر دے تو میرے پاس 200 کوالٹیز ہو جائیں گی ایک اچھے لیڈر کی۔ لیکن جب میں ان تمام کوالٹیز کو آپس میں سم اپ کروں گا، کنکلیوڈ کروں گا، تو ایک لیڈر کی جو بیسک 7 پراپرٹیز ہوتی ہیں ان سب کا کنکلوژن جو سم اپ کر کے ہمیں ملیں گی وہ یہ ہوتی ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلی کوالٹی ایک لیڈر کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے۔ وداؤٹ اے ویژن ایک انسان اچھا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کے پاس ایک مقصد ہی نہیں ہوگا، ایک نظریہ نہیں ہوگا، ایک ویژن نہیں ہوگا، تو آپ کبھی بھی اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ دا گریٹ لیڈرز ہیو گریٹ ویژنس۔ جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے ویژنس ہوتے ہیں، اور یہی انہی ویژنس کی بنا پر وہ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں گا۔ یہی ویژن ہوتا ہے جو کہ ایک لیڈر کو ایک مینیجر سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔
यही विजन होता है जो कि एक आम आदमी को एक लीडर बनाता है। डिफरेंस यही है एक आम आदमी में और लीडर में कि लीडर के पास विजन होता है, और विजन आपका कोई भी हो सकता है, छोटा विजन भी हो सकता है, बड़ा विजन भी हो सकता है। आपका विजन है कि मुझे अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में एक ग्राउंड बनाना है, प्ले ग्राउंड बनवाना है, तो ये आपका विजन है, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपका विजन है कि मुझे अपनी सोसाइटी में तरक्की करवानी है, फॉर एग्जांपल आपने एक टीम बना ली, उसका विजन ये है कि हमें अपने माशरे में जितने भी मसाइल हैं अपनी सोसाइटी में उन्हें हल करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारी गैस की पाइपलाइन जो है वो पूरी सोसाइटी की ख़राब लगी पड़ी है, तो आपका सबसे पहला विज़न ये है कि आप उसे ठीक करें, तो ये आपका विज़न है। तो यही विज़न आपके छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जितना आपका विज़न बड़ा होगा उतने बड़े लीडर आप बन सकते हैं। जितने भी हम बड़े लीडर्स देखें आज तक जो गुज़रे हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और नेल्सन मंडेला हो गए, बाहर से हम निकालें तो वो क्यों बड़े लीडर्स बने? क्योंकि उनके विजन्स बड़े थे। कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनको एक विजन था कि मुझे पाकिस्तान बनाना है। तो बेसिकली सबसे पहली जो क्वालिटी होती है लीडर की वो यही होती है कि उसके पास विजन होता है। और दूसरी क्वालिटी एक अच्छे लीडर की वो ये होती है कि अ लीडर इज़ ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयलिटी। एक अच्छा लीडर अपने विजन के साथ ऑनेस्ट होता है, और अपने विजन के साथ ऑनेस्ट होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो ये है कि इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट हो, जो कि अफसोस के साथ हम आजकल खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कल पेपर है और मैंने कुछ पूरा साल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा हूँ कि भाई मैं कर लूँगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद से। तो जब तक इंसान अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं होगा, अपने आप से झूठ बोलना बंद नहीं करेगा, तब तक वो अपने विजन के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता, तब तक वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो जी तीसरी क्वालिटी एक अच्छे लीडर की ये होती है कि डेडिकेशन। एक अच्छा लीडर अपने विजन के साथ डेडिकेटेड होता है, उसे मोहब्बत होती है अपने विजन के साथ। ये नहीं कि वो दिन रात हार्ड वर्क करे लेकिन उसके पास अगर डेडिकेशन नहीं है, मोहब्बत नहीं है अपने काम से, स्मूथनेस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो थक जाएगा। और अगर लीडर थक गया तो उसके अंडर में जो टीम काम कर रही है वो भी अपना 100% नहीं दे सकेगी। तो क्योंकि टीम ये सोचेगी कि भाई हमारा लीडर ही काम नहीं कर रहा तो हम क्या काम करें। तो सबसे तीसरी जो क्वालिटी है लीडर की वो ये होती है कि वो अपने काम के साथ, अपने विजन के साथ डेडिकेटेड होता है। अगर डेडिकेशन की मैं आपको मिसाल दूं तो आजकल हम यूट्यूबर्स का ज़माना है, तो एक यूट्यूबर, किसी भी कामयाब यूट्यूबर से आप पूछें जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, मिलियन व्यूज़ आ रहे हों हर वीडियो पर, तो वो कहेगा, आप उससे जब पूछेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो वो कहेगा कि मेरी ये डेडिकेशन थी, मेरी ये मोहब्बत थी इस काम से कि मैं लगा रहा। लोग मुझे कहते रहे कि तुम पागल हो, क्या कर रहे हो, कोई आउटकम नहीं मिल रहा, फिर भी लगे हुए हो। तो ये डेडिकेशन आपको चाहिए अच्छा लीडर बनने के लिए। चौथी पॉइंट जो कि लीडर में होनी चाहिए वो है एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पर काबू होना चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरियात उसे मालूम होती है। वो अपने लोगों की ज़रूरियात उसे जब मालूम होती हैं तो वो उन सबको अपने कंट्रोल में इस तरीके से लेता है कि उनका ख्याल रखता है इस तरीके से कि उनका ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्डअप हो जाता है। तो ये एक क्वालिटी होती है अच्छे लीडर की कि वो अपनी ख्यालात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने कंपनी, अपने लोगों के मफाद के लिए तर्क कर देता है, अपनी अना को कुर्बान कर देता है। कि एक अच्छा लीडर वो होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ़ैसला लिया, मुझे कोई आउटकम उसका नहीं मिल रहा, अब मैं बैठा अपनी टीम के साथ मैंने डिस्कस किया, तो मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बता रहा है कि सर इसको आप थोड़ा सा ना यूं कर दें, वो मुझे आइडिया दे रहा है। तो अब मैं अपनी अना को कुर्बान कर दूंगा। अगर अच्छा लीडर होगा ना, उसका आइडिया अच्छा है, तो मैं अपने आइडिया को तर्क करके उस सिक्योरिटी गार्ड का आइडिया लूँगा। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो किसी को अपने आप से कम नहीं समझता, सबको साथ लेकर चल रहा होता है, अपनी पूरी टीम को। उसके बाद पांचवी क्वालिटी एक अच्छे लीडर की, अकाउंटेबिलिटी।
एहतिसाब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा रात को जब सो तो अपना एहतिसाब करके सो, कि जब पूरे दिन में क्या काम किए, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ भी लिखो, अपने जो बुरे काम किए वो भी लिखो, फिर ये अहद करो कि मुझे ये बुरे काम कल नहीं करने। तो एक अच्छे लीडर की भी यही पहचान होती है कि वो अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखता है, अपना एहतिसाब करता है कि मैंने पूरे दिन में क्या काम किए, अपनी टीम के साथ कैसे बिहेव किया। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं बेसिक एक अच्छे लीडर की। उसके बाद छठी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो अ गुड लीडर इज़ अ गुड कोच। एक अच्छा लीडर एक अच्छा कोच होता है कि वो उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें भांप लेता है कि मेरी जो टीम है ये कौन सा शख्स कौन से काम में एक्सपर्ट है, ये कौन सा शख्स किस काम के लिए बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरी टीम बनी हुई है, मुझे 5 लोग हैं मेरी टीम में, एक जो है प्रेजेंटर है, एक वीडियो एडिटर है, एक रिसर्चर है। अब मैंने एक को जो प्रेजेंटर जिसको बनाया है वो मैं देख रहा हूँ कि फंबल्स कर रहा है जब वीडियो बना रहा है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो है रिसर्च वर्क में। तो मैं उसे भांप लूँगा कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट इस काम में है, तुम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो तो तुम यही काम करो। मैं किसी और को जिसका इंटरेस्ट होगा इस काम में उसे अपने जो है प्रेजेंटिंग वाले काम में लगाऊंगा। तो एक अच्छा लीडर अपने लोगों को पहचान लेता है कि किस में कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है, उसकी बिना पर वो उन्हें वो काम देता है। इस हिसाब से वो सबको साथ लेकर चल रहा होता है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज़, एक अच्छे लीडर का कैरेक्टर जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है और बाकी की 6 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो आप अच्छे लीडर तो क्या अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते जब तक आपका इखलाक अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आपके दाग लगा हुआ है, आपके ज़मीर पर, आपके किरदार पर कोई दाग है, तो आपकी टीम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेगी। कि वो सब कहेंगे कि यार हमारा लीडर जो है इसका अपना किरदार साफ़ नहीं है तो हम इसकी बात क्यों मानें। कि अगर आपका किरदार साफ़ होगा, आपके इखलाक अच्छे होंगे, अपनी टीम के साथ आप अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, तो सबका आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। और इसी को ट्रस्ट को लेकर आप जब आगे बढ़ेंगे तो अच्छे लीडर भी बन जाएंगे और आपकी कंपनी तरक्की भी करेगी। और एक अच्छा लीडर वो होता है जो किसी को भी कम नहीं समझता। कि यहाँ पर मुझे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जो है लाइन याद आ रही है, मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के वजूद को इग्नोर नहीं कर सकते। एक ज़र्रा होता है मामूली सा, उसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो हमारी आँख में आकर पड़ता है तो फिर हमें एहसास होता है कि भाई ये भी कोई चीज़ है। वो अपने वजूद का एहसास हमें दिलाता है हमारी आँख में जब चला जाता है तो बिल्कुल इसी तरीके से एक अच्छा लीडर जो होता है वो किसी को भी हकीर नहीं समझता, सबको साथ लेकर चल रहा होता है। तो ये होती हैं बेसिकली एक अच्छे लीडर की बेसिक क्वालिटीज़ जो कि एक लीडर में मस्ट होना चाहिए। इनके बगैर कोई भी इंसान अच्छा लीडर नहीं बन सकता। अच्छा जी, अगर हम सम अप करें, कंक्लूड करें, सारी ओवरव्यू ले लें आज के सेशन का, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भाई एक लीडर कौन होता है। लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चल रहा होता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। उसके बाद दूसरी क्वालिटी एक अच्छे लीडर की कौन सी और उसके बाद जो है लीडर और बॉस में क्या फ़र्क होता है इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद 7 क्वालिटीज़ हमने डिस्कस की एक लीडर की। सबसे पहली विज़न उसके पास होता है, दूसरा वो ऑनेस्ट होता है अपने विज़न के साथ, तीसरा कि वो डेडिकेटेड होता है अपने विज़न के साथ, चौथी कि वो अकाउंटेबल होता है, पांचवा कि वो अ गुड लीडर इज़ अ गुड कोच। और फिर एक और क्वालिटी बीच में हम मिस कर गए यहाँ पर ओवरव्यू में कि वो उसके बाद सेल्फ कंट्रोल होता है, एम्पैथी होती है, और लास्ट क्वालिटी उसका जो है कैरेक्टर सबसे बेहतरीन होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लीडर कौन होता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और सेशन में मिलेंगे और भी आपके इल्म में इजाफा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।